أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور عید بھی آپ لوگوں نے خوب انجوائے کی ہوگی. اور میٹ کھاتے کھاتے ابھی بھی عید یاد آ رہی ہوگی، کسی کو اپنے گائے یاد آ رہی ہوگی، کسی کو کیمل یاد آ رہا ہوگا، تو کسی کو گوٹ یا شیپ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یادگار تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، جو ہم ایک سال بعد مناتے ہیں اور سارا سال اس کے مزے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور بیٹا آپ لوگوں سے فرسٹ آف آل کے ویڈیوز آپ نے آن نہیں کرنی، ایٹیکیٹس کا بہت آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. جیسے پریویس لیکچرز میں آپ لوگوں نے گڈ مینرز شو کیے ہیں، اسی طرح سے انہیں کنٹینیو رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور اسے اپنی عادت بنا لیجئے. اور سیکنڈ کہ آپ کے پاس آپ کے جو ورک بک ہے، پینسل، ریزر، شارپنر، جو تھنگس ہیں آپ لوگوں کی، آپ کے پاس نیسیسری تھنگس جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ عائشہ فاطمہ، آپ کچھ کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں؟ ابیحہ زاہد، بیٹا اگر تو لیکچر سے ریلیونٹ ہیں کوشچنس تو ٹھیک ہے. ویسے تو جو ہے نا، میں آپ سے یہ جو کوشچنس ہیں نا یہ میں بعد میں لوں گی. لاسٹ ٹائم بھی لیکچر ہم لوگوں کا رہ گیا تھا، بیچ میں انٹرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے، کنیکشن بہت زیادہ مرتبہ فیل ہوا تھا، اس وجہ سے میں آپ سے لوں گی کوشچنز آپ کے، بٹ اینڈ آف دا لیکچر. آج میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا جتنا ہے اسے کمپلیٹ کروا دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی لرننگ سٹارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کا اگست کا کام بھی سٹارٹ کروانا ہے. اچھا، کھانا کھانے کے لیٹ سٹارٹ آور ورک. کھانا کھانے کے آداب. اور ہاں، آپ لوگوں نے کھانے پینے کے جو آداب ہیں اس کا خیال بھی رکھا ہوگا. اچھا، جن بچوں نے آنیسٹلی آپ نے بتانا ہے رکھا ہے کھانے پینے کے آداب کا خیال، مجلس کے آداب کا خیال، تو وہ ہینڈ ریز کریں. یس، گڈ. اور عبد الرحیم نے نہیں کیا، عریج فرقان نے بھی نہیں کیا، عائشہ علی، عائشہ فاطمہ نے بھی نہیں کیا، یا ہینڈ ویسے ہی نہیں ریز ہو رہا؟ ٹھیک ہے، بہت سے بچوں نے کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں ابھی کرنا شروع کیا تو وہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیپ یور ہینڈز ڈاؤن. گڈ. اور اسی طرح آپ لوگوں نے نماز کا بہت خیال رکھنا ہے، نماز بھی پابندی سے ادا کیجیے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ وضو کا بھی خیال رکھیے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے بارے میں بھی پڑھایا جا چکا ہے. اچھا بیٹا، ہم لوگوں نے جو ہے یہ سٹارٹ کیا ہوا تھا کہ کھانا مل کر کھائیں. میں پوائنٹ 9 سے جو ہے وہ سٹارٹ کروا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ پھر لاسٹ میں جو ہے آپ لوگوں سے کوشچنز لے لوں گی میں. اچھا، یہ 4 ہینڈز ریز ہو گئے ہیں. میں اتحامی یونس کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ بتائیں کہ کیا پرابلم ہے. فاطمہ ساجد، آپ کو انمیوٹ کیا ہے، بتائیے. فاطمہ، محمد اجود، آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. جی ٹیچر، میں نے پہلے کیا تھا غلطی سے. آئی کانٹ لسن یو. ٹیچر، جب آپ نے پوچھا تھا کہ کھانا کھایا اچھے طریقے سے تو اس کے لیے کیا
था। मुन्ने मैंने ठीक है, मैंने बाद में फिर कह दिया, चले शाबाश, अच्छी बात है। अब आप लोग जो है ना वो हैंड रेस कर लीजिए, फिर इस तरह से टाइम वेस्ट होगा। हैंड रेस, सॉरी, अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए ताकि मैं लेक्चर लेक्चर जो है वो स्टार्ट करवा सकूं, ठीक है। जो बच्चे आदाब मजलिस का ख्याल रख रहे हैं, खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं और अपने लेक्चर्स के ऊपर अमल कर रहे हैं, तो वो बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। और जो अभी सोच रहे हैं वो भी अच्छे बच्चे हैं, उनको सोच का भी सवाब मिल जाएगा, लेकिन वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे अगर वो उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। अरूबा एजाज, मी गोइंग टू अनम्यूट यू। यस अरूबा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। खाना नंबर 9 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये पहले भी हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा जो है वो जल्दी जल्दी रीड करूंगी मैं, ताकि आज आपका जो ये लेसन है इसको फिनिश किया जा सके, ठीक है। खाना टेक लगाकर ना खाया जाए। वो आप लोगों को पता ही है कि विदाउट एनी सपोर्ट जो है वो खाना चाहिए। खाना टेक लगा के अगर खाते भी हैं तो इजी नहीं होता इंसान। आगे ना जूम तक तो मैं पहुंच गई थी, वो कॉपी पेस्ट और कट शर्ट का मुझे पता नहीं चला, वो नहीं आ रहा था, वो उसमें से नजर नहीं आया बीच में, तो मैं करवा दूंगी आपका, कोई बात नहीं। अच्छा, और हजरत अबू हुजैफा, सॉरी बेटा ये सर्च करना भूल गई हूँ मैं, इसको सर्च करके मैं आपको बता दूंगी कि अबू हुजैफा है या हुजैफा है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से जो आपके पास मौजूद थे फरमाया कि मैं टेक लगाकर नहीं खाता। देखिए ये हदीस मुबारका किसकी है? सही बुखारी। सही बुखारी जो है वो हदीस की सबसे मुस्तनद बुक जो है वो मानी जाती है। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा एतबार किया जाता है कुरान पाक के बाद, ठीक है। इसके इसकी खूबियों की बिना पर ये सही बुखारी की हदीस पाक है। हमारे खाने पीने के एतबार से देख लीजिए। अच्छा, नंबर 10 है खाने में ऐब ना निकालो, यानी कि खाने में किसी भी तरह का कोई भी नक्स नहीं निकालना चाहिए। उसमें कोई भी फॉल्ट जो है आपको महसूस होता है, नमक है, मिर्च अच्छी नमक नहीं है या कम है या ज्यादा है, मिर्च का कोई प्रॉब्लम है या वैसे ही आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो ये नहीं कहे कि ये ऐसा है वैसा है, उसको छोड़ दें। आपने नहीं खाना, छोड़ दीजिए। अगर कोई और चीज वहां पे टेबल पे या दस्तरखान पे मौजूद है उसको खा लीजिए, उसको ले लीजिए, ठीक है। या फिर जो है वो खामोशी से वक्त गुजार लीजिए अपना, लेकिन खाने को बुरा नहीं कहना, ठीक है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला, कभी किसी खाने को बुरा नहीं कहा। ऐब का मतलब होता है किसी चीज की बुराई बयान करना, ऐब बुराई को कहते हैं। उसकी बुराई नहीं निकाली, और अगर पसंद होता तो खा लेते, अगर ना पसंद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़ देते। ये भी सही बुखारी की हदीस मुबारक है। नंबर 11 पे क्या है? खाना पेट भर कर ना खाओ, ठीक है। आपने खाना अगर खाना है तो उसे पेट भर के नहीं खाना। वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं, कि एक वाटर के लिए, एक खाने के लिए, एक एयर के लिए, ठीक है। और खाना खाने से पहले अगर पानी पी लिया जाए तो वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बीच में पीते हैं तो उसका फायदा कम होता है, और अगर आप लास्ट में पीते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है उसका, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि खाना जब आप खाते हैं तो पहले पानी पिए, ठीक है। थोड़ी देर पहले उससे पानी पी लें, दरमियान में अगर जरूरत पड़ती है तो पी लें, अदरवाइज आप पिए ही ना, ठीक है। खाने के आधे घंटे बाद कम से कम फिर आप पानी पिए, फिर आपको जो है वो पेट की बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपने पेट से ज्यादा बदतरीन किसी बर्तन को नहीं बनता। सबसे ज्यादा बुरा अगर वो किसी बर्तन को भरता है ना तो वो क्या है? इंसान का पेट, उसका स्टमक है। हम खाते जाते जब हमारे हाथ जवाब दे जाते हैं ना कि नहीं नहीं भैया अब नहीं, और बाहर निकलने वाला हो जाता है, ऊपर तक गर्दन तक आते, फिर कहते हैं हाँ जी हमारा पेट भर गया। ऐसे नहीं खाना। आप देखें कि किसी रोटी जो होती है या बन होता है, ब्रेड होती है, रस होता है, कोई भी चीज ऐसी है जो बताएं आपके वीट से बनी हुई हो या फूलने वाली हो, तो उसको आप पानी में डालें वो फूल जाती है।
इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं ना, चाहे वो राइस हैं या कोई भी चीज़ है खाने की खाते हैं, तो वो पेट में जाके उसने फूलना होता है, और अगर हम उसके फूलने की जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो वो स्टमक के ऊपर वजन हो जाएगा, स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो वो हमारी बॉडी का पार्ट बन ही नहीं पाएगा, हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए है वो मिल नहीं पाएगी। इसीलिए एयर और पानी के लिए जो है वो जगह रखी गई है कि आप एयर और वाटर के लिए जगह रखें, और एक हिस्सा जो है वो आप खाने का रखें, ठीक है। और जब थोड़ी सी भूख हो तो खाना छोड़ दीजिए। अगर एक रोटी की भूख है तो 3 हिस्से रोटी के खा लें, एक हिस्सा उसका छोड़ दीजिए। 2 प्लेटें की भूख है, 1.5 प्लेट खा लें, आधी प्लेट जो है वो राइस की वो ऐसे छोड़ें कि ले ही ना, यानी कि 2 प्लेटें लेनी है, दूसरी भी ले ली, उसमें से आधे छोड़ दिए, नहीं। आपने, आपको पता है कि आप अगली भी खा लेंगे तो फिर कहीं मुझे थोड़े से राइस और देने, थोड़े से राइस और लिए, अपनी भूख को अभी रखा जारी। आप इस चीज को करके देखिए, उस वक्त आपको महसूस होगा नहीं मुझे भूख बहुत है, लेकिन बाद में आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी और आपका स्टमक जो है वो भी कंफर्टेबल महसूस करेगा, आप खुद अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि वजन नहीं होगा आपके ऊपर, ठीक है। फिर जो बाद में बदहजमी जब हो जाती है तो फिर बोतलें वगैरह पीने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी, फिर हम बोतलें भी पीते हैं, पता ही होगा आपको, ऐसा होता है अक्सर व बेशतर, ठीक है। अच्छा, आ, आगे करते हैं कि आदम के बेटे के लिए इतने लुकमे ही काफी हैं जो उसकी कमर को सीधा रखें, ठीक है। और अगर जरूरी ही हो जाए तो पेट के एक हिस्से को खाने के लिए और दूसरे को पानी और तीसरे को सांस के लिए। ये आपको बताया है ना कि ये चीज हमने अपने साथ रखनी है, ये हमारे प्यारे पैगंबर ने बता दिया है कि किस तरीके से आपने खाना पीना है, ठीक है। अब नंबर 12 पे है कि खाना मिलकर खाया जाए, ठीक है। खाना मिलके खाया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा खाना वो है जिस पर ज्यादा हाथ हों। इसके बेटा बहुत से मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो ये कि फैमिली मेंबर्स, फुल जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके, वो सब मिलके खाएं। इसके अलावा जो है वो किसी जो आपके गेस्ट्स हैं उनके साथ आप मिलके खाएं, या अगर आपके गेस्ट नहीं हैं आप किसी और को जो है अपने ऐसे जरूरतमंद रिलेटिव को अपने साथ मिला लें, अपने दोस्त को अपने साथ मिला लें, या आपके जो नेबर्स हैं उनको अपने साथ मिला लें। अगर अपने साथ बिठा नहीं सकते तो कम से कम अपने खाने में से उनको थोड़ा सा दे दें। और इसके बारे में भी आई थिंक तो इसी के अंदर से शायद हदीस मुबारक थी कि जब तुम खाना बनाओ ना तो उसका थोड़ा सा पैगम्बर पाक ने फरमाया कि जब तुम खाना बनाओ तो शोरबा थोड़ा लंबा कर लिया करो, थोड़ा ज्यादा कर लिया करो, और इसमें से अपने नेबर्स को भी दो, ठीक है, अपने हमसाये को भी दो। कि अपने खाने में दूसरों को शामिल करेंगे तो उसमें बरकत ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर 13 है खाने में बड़ों को मुकद्दम रखा जाए, यानी कि बड़ों को आगे रखा जाए। जब खाना आप डालें, ठीक है, दस्तरखान पे आप सब बैठें तो खुद जो छोटा है वो नहीं, बल्कि जो बड़े हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं, नाना अबू नानो जान, दादा अबू दादो जान, अगर नाना अबू नाना जान या दादो जान, दादा अबू दादा जान, या यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से अगर कोई नहीं है तो आपके फादर मदर हो सकते हैं, फादर मदर या तायाबू तायम्मी, इस तरह से जो हैं, जो आपके बड़े हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट के लिए है कि वो जब आए तो वो भी अगर मौजूद हो तो उनसे कहा जाए कि आप स्टार्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट जो पर्सन्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते तो अपने हाथ ना डालते, यानी आगे ना बढ़ाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करते और हाथ डालते। सही मुस्लिम। अब जो सही बुखारी के बाद एक सही मुस्लिम भी बुक है जो मुस्तनद तरीन किताब है, इसकी भी बहुत सी अहादीस मुसल्लम मानी जाती हैं। ये इसके जो रावी हैं उनका नाम मुस्लिम था, इसलिए इसको सही मुस्लिम का नाम दिया गया कि इसमें जितनी भी अहादीस मुबारक हैं वो सही तरीन हैं। उनका जो सिलसिला है वो पैगम्बर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिलता है। अच्छा, नंबर 4 पे है खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। ये तो आप लोगों को सिखाया जाता है, बचपन ही से सिखाया जाता है, और आदत है हम लोगों को कि हमने खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं, ठीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस हालत में रात गुजारे कि उसके हाथ में चिकनाई की बू हो और उसे कोई चीज तकलीफ पहुंचाए तो खुद को ही मलामत करें, खुद ही को बुरा भला कहें। अगर उसने अब्यूज करना है किसी को तो खुद को कहे कि अगर आपको कोई चीज काट गई है। अब रात के टाइम जो आपको पता है ना, ब्लैक आंट्स,
ब्लैक आंट्स बहुत होती हैं, तो वो अगर आ जाती है, वो ज्यादातर मीठे के ऊपर आती हैं। और जो ब्राउन आर्ट्स होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं ब्राउन आर्ट्स, वो बहुत जोर से बाइट करती हैं, रेड निशान पड़ जाता है उसका। और अगर चावल हो, या खासतौर पर नमकीन के ऊपर जो है ना, वो बहुत जल्दी आती है, जो सॉल्टेड थिंग होती है ना, उसके ऊपर बहुत जल्दी है। तो राइस गिर जाती है, रोटी गिर जाती है, फौरन उसके ऊपर पहुंच जाती हैं। तो वो अगर आपके हाथ पे बाइट कर जाती है, इसके अलावा कोई और कीड़ा वगैरह आपके हाथ पे बाइट कर जाता है, उसको चिकनाई की बू अच्छी लगती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें ये है, ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वीडियोस ऑफ कीजिए, अपनी वीडियोस ऑफ कीजिए, गुड गर्ल्स गुड बॉयज, वीडियोस ऑफ कीजिए। और यानी ये हमारे पैगम्बर पाक ने सफाई सुथराई का भी एक तरह से पैगाम आ गया, और अपनी हिफाजत का भी पैगाम आ गया इसमें, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में ये देखिए, ये आपको बता रहे हैं कि खाना खाने के असल तरीके क्या हैं। फर्स्ट पे है कि खाना जो है वो मिल के खाना चाहिए। और देखिए, आप गर्ल्स को देखिए, जो फीमेल पर्सन हैं, इसमें क्या है कि इन्होंने अपने हेड जो हैं वो कवर किए हुए हैं, ठीक है, हेड्स कवर करने हैं। और मेल को जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सतर नहीं है ये, और फीमेल का जो सतर है उसको ढांपा हुआ ज्यादा बेहतर है। उसके बाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, सॉरी, हाथ धोएं, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, ठीक है। फिर आपने खाना लेटे बैठे नहीं खाना, या पढ़ते हुए नहीं खाना, ये रॉन्ग है। और खाना अगर खाना है तो ठंडा करके खाना है। ये जो ब्लू कलर की लाइंस है ना, ये हॉट है, लेट के नहीं खाना। ये एरो का साइन है जहाँ पे, वहाँ है ये दिखाया है कि बैठ के खाना है खाना, ठीक है। और अगर खाना खाना है तो उसको ठंडा हो लेने दें। गरम गरम खाना, धुआं उठता हुआ खाना नहीं खाना। और ये जिसपे ग्रीन कलर का टिक है, हैंड दिखा रहे हैं, उसमें ये ठंडा हो गया है खाना, कि आपने इसको अगर खाना है तो इसको कूल करके खाना है, कोल्ड हो जाए तो फिर आपने इसको खाना है, ठीक है। ये खाना खाने के आदाब हैं, जो पीछे भी हम लोग पढ़ के आए हैं, कि जो खाने के आदाब हैं। दुआ फातिमा, टर्न ऑफ योर वीडियो, टर्न ऑफ योर वीडियो। मैं आपके अभी क्वेश्चंस लेती हूँ, बस थोड़ा सा रह गया, फिर मैं आपको लेती हूँ। अगर आपको लेक्चर ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, पानी पीने के आदाब हैं, कि हमने पानी कैसे पीना है, ठीक है। पहले खाने के थे कि खाना किस तरह से खाना है, और अब पानी पीने के हैं कि पानी किस तरह से हमने पीना है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने के ये तरीके सिखाए हैं। कौन कौन से हैं जी? नंबर फर्स्ट पे है, पानी का बर्तन दाएं हाथ में पकड़ें। जो टम्बलर है, गिलास है, आपने उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ना है, पीने के लिए भी और सर्व करने के लिए भी, ठीक है। आपने जब किसी को पानी देना भी है ना, तो उसको अपने राइट हैंड से देना है, ठीक है। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। पानी बैठकर 3 सांस में पिए, ठीक है। कि आपने, आपके हैंड में ग्लास है, आपने पानी लिया, 3-4 सिप लिए, उसको छोड़ दिया, फिर 3 और 4 सिप्स लिए, फिर छोड़ दिया, फिर जो लास्ट बच के उसको सारे को पीने, चाहे वो 3-4 हैं या 5-6 हैं या 1 है या 2 है, ठीक है। 3 सांस में पीना है बैठ के। ये सुन्नतें हैं आपकी। सुन्नत, आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, उसने पूरे दिन को जिंदा रखा, ठीक है। उसने पूरे दिन को जिंदा किया। कि अगर हम किसी एक सुन्नत पे अमल करते हैं, तो इसका मतलब है हमने दीन को जिंदा किया, सुन्नत को जिंदा किया। हमने दिखाया लोगों को कि ये हमारा प्यारा पैगंबर जो है, हमारे प्यारे पैगंबर का अमल है, और इस पे हम अमल कर रहे हैं। और अगर उसको आपको देख के कोई और अमल कर लेता है, ठीक है, तो आपको उसका सवाब, उसका भी मिलेगा, अपना भी मिलेगा, ठीक है। और तबलीग करने का सवाब भी मिलेगा। डबल ट्रिपल, एक तीर से कई कई शिकार, 2 शिकार नहीं कहूंगी मैं, कई कई शिकार कहूंगी। आप कर सकते हैं अमल करके। उसके बाद है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमने पूछा, और खड़े होकर खाना? तो अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये ज्यादा बुरा और गंदा तरीका है। सही मुस्लिम में ये मौजूद है हदीस मुबारका कि सॉरी,
نہ تو کھڑے ہو کے کھانا چاہیے، نہ جوتا پہن کے کھانا چاہیے، اور نہ کھڑے ہو کے پینا چاہیے. رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے، رائٹ ہینڈ سے پینا چاہیے، اور بیٹھ کے پینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں. اور ایک کام جو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے، یہ والا کام تو ہم آئی تھنک سو کرتے ہی نہیں ہے کہ پانی کو دیکھ کے پئیں. پانی کو پکڑا اور پی لیا، پانی کے اندر دیکھیں اور پھر پئیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک سنت بھی ہو جائے گی. اور جیسے آپ کے ہاتھوں کو دھونے کے لیے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ ہاتھوں کو آپ دھوئیں، کوئی چیز نہ کاٹ لے، اسی طرح سے اگر پانی کے اندر دیکھ کے پئیں گے تو کوئی کیڑا، کوئی مکھی، خدا نہ خواستہ کوئی مچھر بیچ میں نہ پڑ گیا ہو جو آپ کو جا کے نقصان پہنچائے. ویسے بھی گھن آتی ہے، تو اس چیز کو دیکھ کے آپ نے پینا. کوئی چیز خراب تو اس کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا ایک فگر بھی میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہاں پہ 6 سناز ہیں. کہ فرسٹ آف آل اسٹارٹ کرنا ہے، اسٹارٹ وتھ بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور یہاں مت کئی کئی فگر میں کھڑے ہوئے ہیں جی. یہ دیکھیے لاسٹ میں نے بتا دیا کہ بیٹھ کے پینا. ٹھیک ہے. سی دا واٹر بفور ڈرنکنگ. واٹر کو آپ نے دیکھنا ہے، پھر آپ نے اس کو پینا ہے. دا تھرڈ از ڈرنکنگ ود دا رائٹ ہینڈ. کھانا آپ نے پینا ہے پانی تو کیسے پینا ہے؟ رائٹ ہینڈ سے. اور آلویز سٹ ڈاؤن اینڈ ڈرنک. ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینا ہے. اور ڈرنکنگ دا واٹر ان 3 اسٹیپس. 3 سانسوں میں، 3 حصوں میں پانی پینا ہے. جب آپ اس کو فنش کر لیں گے تو الحمدللہ آپ نے کہنا ہے. الحمدللہ کا مطلب ہے، کس کو پتا؟ ہینڈ ریز کریں. الحمدللہ کا مطلب کسی کو نہیں پتا؟ ٹھیک. اروبا اجاز، me going to unmute you. اروبا کہاں گئی ہے؟ اروبا نے ہینڈ ڈاؤن کر لیا اس لیے آپ نیچے چلی گئی. بہرحال ٹھیک ہے، شاباش. فائزہ ضیاء انمیوٹ ہوئی تھی، آپ نے پھر کر لیا. بہرحال ٹھیک ہے. آپ جو ہیں الحمدللہ کا مطلب جن کو آتا ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. گڈ ان بچوں کے لیے، ویری گڈ، شاباش. اب میں بتا بھی دیتی ہوں جن کو ڈاؤٹ ہے. پہلے ہی شاباش میں نے آپ کو دے دیا. دیکھیں کہ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. للہ، لیے اللہ کے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کا ایک ورڈ ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ کو اس سے کئی نیکیاں بھی ملتی ہیں، درخت بھی لگ جاتا ہے، اور شکر ادا کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. اور پانی تو آپ نے پینا ہی پینا تھا، پیاس تو آپ نے بجھانی ہی تھی، وہ بجھ گئی آپ کی. کیسی بات ہے! دیکھیں ہمارا اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ہمارا فائدہ، جس چیز میں ہمارا فائدہ ہے، جسمانی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، لیکن اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا بشرط یہ کہ سنتوں کے مطابق عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بیٹا میں نے پہلے آپ لوگوں کو کوشچن آنسرز بھی جو ہیں یہ دیے تھے میں نے آپ لوگوں کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ والے کوشچن آنسرز جو ہیں یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں لازمی. یہ والا کھانا مل کر کھانے کے بارے میں حدیث مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ. اور اس کے بعد آپ کا نیکسٹ یہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں کیا پڑھنا چاہیے. یہ آپ کے شارٹ کوشچنس ہیں. یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو لرننگ کے لیے دیے تھے. ٹھیک ہے. اب میں لانگ دے رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے. یہ آپ نے کرنا ہے. آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ آپ کی اب میرے خیال سے ٹیوزڈے کو آپ کی کلاس ہوگی. اور آپ کے پاس کتنے دن ہیں لرننگ کے لیے اس کی؟ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے،
4 डेज आपके पास हैं, 4 डेज में आप 2 क्वेश्चंस भी करके करेंगे, बहुत इजीली आपको ये लर्न हो जाएंगे। ठीक है, आपने इन्हें लर्न करना है। और ट्यूसडे को फर्स्ट मैं आपसे इसका ओरल टेस्ट लूंगी, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी आपके होमवर्क के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, और अगर आपने सबमिट करवाया और अभी तक लेकर नहीं गए तो अपना ले जाइए होमवर्क। ठीक है, उसके अंदर ये सारा कुछ आपका मौजूद है। खाली जगह पूर्व भी है इसमें कि जब तुम में से कोई खाना खाने लगे तो डैश पढ़े, बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरी ही। ये इसको जरा ये वाले जरा ध्यान से कर लीजिएगा, अव्वलिही वाला। ठीक है, ये बहुत से बच्चों को समझ नहीं आएगी, इसको आपने बहुत ख्याल से करना है। और अगर आपके पास अभी बुक्स हैं तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं अभी से। आदमी अपने पेट से ज्यादा बदतरीन किसी बर्तन को नहीं भरता। पानी डैश सांस में पिए, पानी का बर्तन डैश हाथ से पकड़ें, पानी पीने के बाद दाएं हाथ से पकड़ें, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, जब खाना खाएं तो दाएं हाथ से खाएं, खाना बैठकर खाना चाहिए, शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। और पेपर्स के लिए इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, पेपर्स में एमसीक्यूज जो हैं वो कहीं से भी बन के आ सकते हैं, खासतौर पे आपकी खाली जगह में से बन के आ सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके जो लेसन है उसमें से नहीं होंगे, जो रीडिंग के लिए होता है, आपके क्वेश्चन आंसर्स में से हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोगों ने अपना लेसन जो है वो लर्न करना है। ओके बेटा, अब जिन बच्चों के हैंड्स रेज हैं मैं उनसे क्वेश्चंस ले लेती हूँ। और अगर आप लोगों को दोबारा कुछ करवाना पड़े तो वो भी मैं करवा दूंगी। नूरा रहमान, आपको देख लिया गया है कि आप कैसी लग रही हैं, बंद कर दीजिए अब वीडियो, बंद कर दीजिए वीडियो, टर्न ऑफ योर वीडियो।